जो सपोर्ट अगर मिलता है, लाइक फैमिली को, अगर फैमिली सपोर्टिव है तुम्हारी तो वो बार बार बोलते रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वी आर सपोर्टिंग यू, तो इट हेल्प्स अ लॉट। 2021 तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, मैं सारे पीएसयू के एग्जाम दिया करती थी, किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अदरवाइज यू कैन गो बैक, मतलब आई कुड हैव गॉन बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैड दैट ऑप्शन, बट आई डिडंट वांट टू। मैं डिप्रेशन में चली गई थी लिटरली, कि मैं सोच रही थी मैं पापा को क्या बोलूँगी, मैं अपने फ्रेंड्स लोग जो इतना होप करते हैं कि नहीं इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। Hello aspirant, I welcome you all in this special session of BYJU'S Exam Prep Spotlight, where we bring our achievers to know about their preparation journey and also asking them that what are the challenges they faced in their preparation journey, so that जो future aspirant है, they can get to know that how to tackle the challenges in their journey when they will be preparing for these big examinations. So today's session is very special because our today's guest is special. She is Rashmi and she secured AIR 39 in Engineering Services Examination 2023. So we would be asking her that what were the challenges she faced in her journey and also what were inspiration and strengths, weaknesses, everything about her journey. So first of all, congratulations Rashmi. Thank you, sir. So I would like to ask you, please brief about yourself so that our future aspirant get to know about you. Okay. So, sir, I am Rashmi. I belong to Dausa district of Rajasthan. I did my BTech in Mechanical Engineering from IIT Kanpur. I passed out in 2019. After that, I joined Suzlon Energy Limited from campus placement. And after working there for 1 year and like 4 or 6 months, I started my engineering services preparation. So after that, I didn't clear my ESC prelims in 2021. Okay. And in 2022, I clear pre and mains, and I gave the interview also, but I was not selected by 1 mark. And this year, I am selected at the rank of 39, and I'm also selected at DRDO at the post of scientist. So this is my introduction. Okay, so Rashmi, I would like to ask you, like your BTech is from IIT. Yes, sir. Generally, the student who do their BTech in IIT from IIT, Yes, they sir. get selected in some of the good companies. Like Yes, you sir. also had that experience also. Yes, sir. So how you started preparation for ESC and why you think you should prepare for ESC? ओके, तो सर ये थोड़ा मुझे लगता है शायद मे बी फैमिली बैकग्राउंड से ही आता है। मेरे पापा JNV में लाइब्रेरियन हैं और मेरा भाई मुझे बार बार बोलता रहता था कि किस तरीके से ESC में मतलब क्या पर्क्स होते हैं, किस तरीके की जॉब होती है। तो जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी तो कंपनी बहुत अच्छी थी सुजलॉन, मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करना, बट जिस तरीके से मेरा भाई बताता तो मुझे थोड़ा सा डायलेमा हो जाता था कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो मैंने कुछ मंथ्स तो डायलेमा में गुजारे थे। एंड आई हैड अ फ्रेंड राहुल शेखर जिसने 2021 में AIR 3 सिक्योर की थी, तो वो उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था, तो वो भी मेरा एक मोटिवेशन रहा। तो जब आसपास के लोग भी जब स्टार्ट करते प्रिपरेशन तो आपको भी लगता है कि मे बी यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट एंड यू कैन गेट व्हाट यू वांट, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो कोविड के टाइम पे मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो लेकिन जब मुझे लगा कि मे बी आई कैन डू इट सो उसके बाद मैंने जॉब रिज़ाइन करके फिर मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इसकी। Okay. So Rashmi, I would also like to ask you ki like you have prepared for engineering services exam. It is not an exam like you prepare for 2 days, 3 days. Yes, sir. It is like a journey, entire journey. Yes, sir. And in this journey, if we are preparing for this, we have to motivate ourselves throughout. Yes, sir. Because demotivation आना एक normal चीज है, जो Yes, first rank वाला student होगा उसको भी आया ही होगा। हाँ। So how you tackle that? Because अगर हम उसको tackle कर पाएंगे तभी ये possible है आप जहाँ पर बैठे हैं आज। Yes, sir. So how you tackle that? तो सर उसमें ऐसा होता है कि मतलब 1 साल तो चल जाता है काम, बट जब 1-2-3 साल होने लगते हैं तो थोड़ा सा लगने लगता है कि मे बी शायद तुम गलत जगह पे हो, कहाँ मतलब कहीं जॉब ही नहीं लग रही है, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि तुम्हारे अगर फ्रेंड्स अगर सोशल सर्कल अच्छा बना रखा है या फिर तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छी तरीके से बात होती है, तो जो सपोर्ट अगर मिलता है, लाइक फैमिली को, अगर फैमिली सपोर्टिव है तुम्हारी तो वो बार बार बोलते रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वी आर सपोर्टिंग यू, तो इट हेल्प्स अ लॉट। और कभी डाउन फील होता है तो तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाके बात कर लो। बाकी ये तो पता खुद के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट, बट इट कैन टेक 1 or 2 ईयर,
तो ये वाली चीज़ पता चलनी चाहिए इंसान को, है ना. अदरवाइज यू कैन गो बैक, मतलब आई कुड हैव गॉन बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई हैड दैट ऑप्शन, बट आई डिडंट वांट टू, बिकॉज मुझे पता था, मुझे भरोसा था मेरी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि आई कैन डू इट. सो आई वेटेड एंड 2021 तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे. मैं सारे PSU के एग्ज़ाम दिया करती थी, किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा था. 2022 में भी, एंड सबका रिजल्ट इस साल से आना स्टार्ट हुआ था. मेरा NTPC में सिलेक्शन हुआ, HPCL में सिलेक्शन हुआ, NHPC में भी सिलेक्शन हुआ, देन DRDO, देन ESE. तो ऐसा होता है कि अगर एक सिलेक्शन होने लगता है तो फिर आता रहता है सिलेक्शन. तो लेकिन ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. तो उसके लिए पेशेंस होना चाहिए कि इन एग्ज़ाम्स के लिए टाइम तो लगता है, 2-3 साल लगता ही है. एग्जैक्टली. हाँ, तो वो है. और बाकी मोटिवेशन तो सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए, अच्छे से फ्रेंड्स बनाओ. एंड दूसरा ये होता है कि सर मैंने एक एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, उसमें ऐसा है कि रोज़ पढ़ने के लिए मोटिवेशन काम नहीं कर सकता, कि रोज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन सीख करे, वो चीज़ नहीं काम करती है. तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना है, ऐसा नहीं कि पीयर प्रेशर में ही कर रहे हो, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे आप. दूसरा हैबिट्स फॉर्म करनी होती है, कि अगर आप हैबिट फॉर्म कर लोगे तो आप बिना मोटिवेशन के रोज़ पढ़ाई कर सकते हो 6-7 घंटे. तो यही है इसका सोल्यूशन. ओके, सो लाइक हम भी जनरली स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्निकल में, तो टेक्निकल में आपको एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, उसके बाद आपके सब एग्जाम निकलेंगे. और जब तक वो नहीं होगा तो कोई नहीं निकलेगा. ये करंट अफेयर नहीं है कि वो इस बात पे डिपेंड करे कि इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया या कल क्या होने वाला है. सो दैट इज टेक्निकल पार्ट. एक बार आपने कर लिया तो आप सभी एग्जाम्स निकाल लेंगे. जैसे आपने पिछले वाला जो इंजीनियरिंग सर्विसेज आप कह रहे हैं 1 नंबर से जो रहा, तो उसके बाद मतलब फिर से प्रिपरेशन करना, वो फेज कैसी रही लाइफ में, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब 1 नंबर के कारण पूरा साल फिर से आपको प्रिपेयर करना था. तो सर पिछली बार मेरा प्री तो अच्छा नहीं गया था, मेंस ठीक गया था. इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, इतना अच्छा था कि मैं इंटरव्यू देने के बाद खुश थी. तो मुझे काफ़ी होप थी कि इस बार मैं सिलेक्शन हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा. मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी, क्योंकि इतना शायद मैं भी प्री मेंस के लिए नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत डीप तरीके से प्रिपरेशन की थी. तो मैं बहुत होपफुल थी कि मे भी अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिले पर सिलेक्शन पक्का है इस सेंस में. और बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज में भी मुझे पैनल मेंबर बोला करते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, तो एक थोड़ा सा बन जाता है. फैमिली बोलती थी कि इस बार सिलेक्शन पक्का है, ऐसा सेंस में. तो जब रिज़ल्ट आया तो मुझे बहुत धक्का लगा. तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ. तो मुझे टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. तो मैं 2 वीक से फिर मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाई. मैं अपने रूम में थी, थोड़ा सा डिप्रेस वाला फेज चला गया था. क्योंकि ऐसा है कि जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद खुशी उतनी नहीं होती जितनी कि सिलेक्शन ना होने के बाद जो दुख होगा वो बहुत बड़ा होता है. तो आई रिमेंबर आई क्राइड, मतलब जब सिलेक्शन नहीं हुआ था. तो उसके बाद जब रिजल्ट मार्क्स आए तो पता चला 1 नंबर से नहीं हुआ. तो मुझे 1 नंबर का दुख नहीं था कि वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं हुआ तो उसका दुख हुआ था. फिर 2 वीक बाद मुझे फ्रेंड्स वगैरह लोग बोलते थे कि अब नेक्स्ट ESE प्री है, उसका भी देखना है. तो समहाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट प्री. तो सर दुख होता है, टाइम लगता है, बट इवेंचुअली यू हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम कैसे हैं. आप 1 महीने तक या 2 महीने तक ड्वेल नहीं कर सकते सेम फीलिंग के ऊपर. तो ये चीज़ तो होती है. ओके, सो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ड्यूरिंग दैट जर्नी व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस यू फेस्ड? Because for every aspirant, like some aspirants are starting preparing in the college. Yes sir. They have challenges like कि semester exam है, college के कुछ projects वगैरह है, तो उन सब के कारण delays होते हैं, problems आती हैं. So like you prepared after job, not even after college, after job. Yes sir. So what were the challenges you faced in your preparation journey? Okay. तो सर मेरा जब मैं IIT कानपुर में थी तो मैं 1-2 साल तक एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा इन्वॉल्व थी, स्पोर्ट्स एंड ऑल. इसमें तो मैंने सीरियसली नहीं लिए थे. 3rd ईयर से मैंने सीरियसली लेना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे वन ऑफ द रीज़न ये था कि पहले मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था. 3rd ईयर में मैंने IC इंजन किया एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग किया था, ओपन इलेक्टिव. तो इन सब्जेक्ट से फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे तो यही पढ़ना है. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यही लगी थी पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग. वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेक्निकल कोर में ही जाना है. तो उसके बाद ऐसा है कि उतना मैंने जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इन सब्जेक्ट्स को जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे उतना दिक्कत नहीं फेस हुआ था. बट बाकी जो सब्जेक्ट्स मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था बिल्डअप करने में. तो अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से कॉलेज के स्टूडेंट्स को सेमेस्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनकी CPI पे, बाकी प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो. क्योंकि ऐसा है कि आपको जब इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत ज़रूरी होता है. अगर कॉलेज में आप ये बेस बिल्ड कर लोगे तो आपको प्रिपरेशन में उतना टाइम नहीं लगेगा, 2-3 साल में भी कम लगेगा. तो 1 साल तो मुझे लगता है कि शायद अंडरस्टैंडिंग में चला गया होगा मेरा.
फिर बाकी 2 साल प्रैक्टिस ही मैटर की है। एंड प्रॉब्लम्स तो सर ऐसा है कि हर मंथ एक लो फेज़ आता है, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे आज मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैंने अपने आप के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की है, अगर मुझे नहीं पढ़ना तो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि दिमाग नहीं लगता। तुम बैठे रहोगे लाइब्रेरी में 6 घंटे, तुम्हारा दिमाग नहीं लगेगा, तो वो टॉर्चर करना होता है। तो मैंने अपने आप को टॉर्चर नहीं किया ऐसा। मैं मतलब मुझे मन नहीं कर रहा, कहीं घूमने का मन कर रहा है, मैं घूमने चली जाती थी, पढ़ाई कर लेती थी, जो जैसा सही लगता था। बट ये कह सकते हैं कि फैमिली का सपोर्ट था, तो उन्होंने मुझे 3 साल तक सपोर्ट किया। मे भी बहुत सारे लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कारण नहीं इतना कर पाते, पर ये है कि स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो एक सस्टेनेबल लाइफ तुमको स्टार्टिंग से ही मतलब सस्टेनेबल पढ़ाई होनी चाहिए, खुद की मेंटल हेल्थ वगैरह को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे फेज़ आते हैं कभी कभी नहीं पढ़ाई करने का मन कर रहा, 2-3 दिन हो गया, तो एक को गिल्ट हो जाता है अगर 2-3 दिन की पढ़ाई नहीं हुई तो लगता है कि पेरेंट्स इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, मैं तो इधर पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या करूँ मैं। तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिन का रेस्ट चलता है, सबका चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बर्नआउट फेज सबके आते हैं, तो रेस्ट ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ डिटेरिएट हो रही है और तुम फिर भी मतलब लगे जा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, तो यही सब है सर। ओके, सो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जैसे आपकी जर्नी में आपको लगता होगा कि इन कारणों से मेरा सिलेक्शन हुआ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसके कारण आपको लगता होगा अगर ये मैं कर लेती तो शायद और अच्छा रैंक आता। मतलब कुछ स्ट्रेंथ होंगी और कुछ वीकनेसेस होंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी बताएं ताकि स्टूडेंट्स अभी से उस चीज़ पर काम करें, ताकि वो जो भी उनका ड्रीम है उसको फुलफिल कर पाए। तो सर मेरा इस बार भी प्री उतना अच्छा नहीं गया था, पिछली बार भी नहीं गया था, तो मुझे फाइनली मैं कन्विंस हो गई इस चीज़ से कि मैं ऑब्जेक्टिव वाले नहीं कर पाती क्वेश्चन, काफ़ी वीकनेस है। ऑब्जेक्टिव में भी नेगेटिव है, तो ऐसा है कि अगर मैं 2 क्वेश्चन मुझे 4 में से 2 ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि नहीं ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो मैं रिस्क नहीं ले पाती उसको लेने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बार ऐसा सोचती हूँ कि दिस शुड बी माई लास्ट चांस, इस बार मुझे अच्छी रैंक सिक्योर करनी है। तो उस फियर में मैं रिस्क नहीं ले पाती उसको करने का। लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट होता है। अगर 2 में तुमको लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो फिर तुम्हें टिक कर देना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये है सर, ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बाकी सर एग्ज़ाम के टाइम पे कंपोजर कैसे मेंटेन किया जाए वो शायद मुझे अभी तक नहीं आया, क्योंकि इस बार प्री में ऐसा है कि जीएस तो टफ था खैर, तो जीएस का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे समझ में आ गया तो सबका टफ है, तो उतना मुझे बुरा नहीं लगा था। पर जब टेक्निकल की बात आई तो टेक्निकल मतलब मोस्ट ऑफ द लोग आइट्रेशन में करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में ईजी करेंगे, सेकंड में जो नहीं हो रहे उनको करेंगे। तो मैंने जो फर्स्ट आइट्रेशन किया 1.5 घंटे में, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन छोड़े थे जो मुझे लग रहा था कि मैं ऑफलाइन भी तुम मुझे दे दो तो भी शायद मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, इवन तो हमने पिछले साल मेंस की कोचिंग कर ली थी, बट मुझे टफ लग रहा था वो चीज़। तो एग्ज़ाम में, क्योंकि उस टाइम मेरा कोई सिलेक्शन किसी पीएसयू में सिलेक्शन नहीं था, ईएससी में भी सिलेक्शन नहीं था, तो उस टाइम एग्ज़ाम में क्या हुआ, मैंने आधे घंटे तक पेन पेपर नहीं उठाया था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी लिटरली, कि मैं सोच रही थी मैं पापा को क्या बोलूँगी, मैं अपने फ्रेंड्स लोग जो इतना होप करते हैं कि नहीं इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, मैं कैसे किसी को और खुद को कैसे एक्सप्लेन करूँगी कि ये तो चला गया, इस बार तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। तो आधे घंटे तक सर मैंने कुछ नहीं किया था। फिर आधे घंटे बाद, क्योंकि सारे लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, तो उनको देख के लगा कि नहीं कुछ तो करना ही है, अब नहीं हो दो, जो होगा वो होगा, कुछ तो करना है। तो फिर मैंने उसका किया था। तो फिर रिज़ल्ट तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, बट हो गया था संभव में भी, बॉर्डर लाइन पे हुआ होगा प्रीलिम्स। तो सर ऐसा है कि एग्ज़ाम के टाइम पे तुम अपना कंपोजर कैसे मेंटेन करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मोस्टली सर टेस्ट सीरीज से आ जाती है लोगों को, कि टेस्ट सीरीज भी जनरली जनरली टफ ही बनाती हैं कोचिंग, तो उससे आ जाती है चीज़ कि नहीं आता, मतलब अगर कॉन्फिडेंस वगैरह लो हो रहा है करते करते, तो इस तरीके से नहीं करना है कि पेन पेपर छोड़ के बैठ जाना है, डिप्रेशन वगैरह ऐसा नहीं करना होता, गलत है ये चीज़। तो मे बी लोगों को समझ में आए मेरे एक्सपीरियंस सुन के कि ऐसा नहीं करना है। इसके लिए पहले बहुत सारी टेस्ट सीरीज दो, ताकि तुम अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना पाओ कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इस तरीके की सिचुएशन ना हो पाए। एंड सर मेंस के लिए भी सर प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। PYQ करो, टेस्ट सीरीज दो कंटिन्यूसली। एंड सर इंटरव्यू की मैं कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ सही भी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जिनको झिझक नहीं होती, जो ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट मैंने जब पिछले साल दिया था, आई रिमेंबर माई फर्स्ट मॉक, तो जब मैंने कोचिंग में फर्स्ट मॉक दिया था तो उस टाइम मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। आई फेल्ट लाइक ट्राइंग इन फ्रंट ऑफ द पैनल। उसके बाद मैं मॉक देने के आने के बाद मैं रूम पे रोई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर धीरे धीरे मैंने एक अपाला मिश्रा हैं मैम, उन्होंने CSE क्लियर किया था, तो उन्होंने एक PDF बना रखा था
कि किस तरीके से उन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी। वहाँ से मैंने मोटिवेशन लिया, तो मैंने ऐसे PDFs वगैरह खुद के लिए बनाए, वहाँ से प्रिपरेशन किया, वहाँ से किक स्टार्ट मिला मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। मैंने बोल के प्रिपरेशन की, मेरे एक फ्रेंड ने काफ़ी हेल्प की थी, उसके साथ डिस्कशन करके मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी। तो तब मुझे समझ में आया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन का भी एक्चुअली मतलब होता है। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो सकता, मे बी 30-40 मार्क्स का डिफरेंस तुम क्रिएट कर सकते हो इंटरव्यू में, बट इट्स वर्थ इट। प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे कितना ही प्रीमियम मीन्स कितना ही ख़राब हो गया हो, प्रिपरेशन करनी चाहिए। और नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे कि वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मुझे नेक्स्ट ईयर HPCL के इंटरव्यू और DRDO के इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प किया था। तो प्रिपरेशन और ऐसा है इस ESE में कि प्री की प्रिपरेशन काफ़ी अलग होती है, मेंस की अलग होती है, इंटरव्यू की अलग होती है। तो हर स्टेज अलग अलग चीज़ें सिखाती है, हर एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके के नए एक्सपीरियंसेस लेके आता है। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जो मेरे अपकमिंग थे ऑलरेडी आंसर कर दिया। आई वाज अबाउट टू आस्क कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, वो आपने अभी बता ही दिया। तो प्रीलिम्स और मेंस डेफिनेटली अलग होता है। तो इंटरव्यू में आपका वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा फाइनली? ओके, तो सर पिछली बार तो मेरे 130 मार्क्स आए थे, TCN आंसर थे, वो काफ़ी अच्छा मतलब स्कोर भी था उस टाइम के लिए। इस बार सर 45 मिनट्स इंटरव्यू चला था, राज शुक्ला सर थे। तो ऐसा है कि कुछ पैनल मेंबर को लेके लोगों में रहता है कि ये सर बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो डर लगा रहता है लोगों पे। जैसे राज शुक्ला सर को लेके बोलते हैं कि सर कभी कभी बहुत अटपटे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि क्योंकि लोग थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके चलते हैं, लोगों को प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी लगती है, नहीं हो तो डर लगा रहता है। तो लोगों को लोग चाहते हैं कि थोड़ा कुछ प्रिडिक्ट कर सके। तो राज शुक्ला सर के केस में लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, वो कभी भी उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आउट ऑफ द टेक्निकल डोमेन, तो लोगों को डर लगा रहता है। बट मैंने लोगों से सुना, एक्सपीरियंस किया, मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो चल जाता है काम, इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो इट विल वर्क आउट फॉर गुड। तो वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था मेरा। उन्होंने स्टार्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट से किया था कि दौसा कॉन्स्टिट्यूंसी है कि नहीं। तो सर मुझे पता नहीं था कि वो है कि नहीं, बट मुझे लगा कि मे बी डिस्ट्रिक्ट है तो शायद होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो मैंने हाँ कर दिया। वो गैस वर्क था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मतलब हर इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में बताते हैं कि गैस वर्क नहीं करना चाहिए। ये तो फर्स्ट एडवाइस होती है सबकी। बट आई थॉट कि मैं यही आंसर नहीं कर पाऊंगी तो शायद मेरा मॉक इंटरव्यू पूरा खराब, मतलब पूरा इंटरव्यू खराब चला जाएगा। तो मैंने उसको गैस कर लिया। फिर उन्होंने पूछा कि सचिन पायलट दौसा डिस्ट्रिक्ट से है क्या, क्योंकि अपकमिंग राजस्थान इलेक्शन है, तो मे भी शायद उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा। तो सर उसका मुझे वो भी नहीं पता था, पर ये मुझे ये पता था कि सचिन पायलट आसपास में आते थे वहाँ पे कुछ रैलीज वगैरह के लिए। तो फिर मैंने उसको भी गैस वर्क में हाँ बोला था। उसके बाद उन्होंने IIT कानपुर के बारे में बोला कि उन्होंने डैफ में तो होती है सारी डिटेल्स। उन्होंने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा। तो वहाँ सर मैंने इंटरनेट फ्रीडम के बारे में वन ऑफ द थिंग बोली, इंटरनेट फ्रीडम है, स्पीड काफ़ी अच्छी है। वहाँ से वो 5G के ऊपर ले गए, 6G के ऊपर ले गए। मुझे उतना आइडिया था नहीं उसके बारे में, तो मैंने कुछ आंसर किया। मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों का नहीं आंसर कर पाई। तो आई थॉट कि सर कुछ हिंट ले ले कि इस लड़की को नहीं पता है तो शायद नहीं पूछना चाहिए। बट सर वेंट ऑन। सर ने काफ़ी कुछ उसके बारे में पूछा, कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा, इंडिया जापान के कुछ ट्रीटी वगैरह, कुछ डील वगैरह हुई होगी उसके बारे में पूछा, फिर 6G के बारे में पूछा, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा, काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा। तो जो हुआ मैं कुछ बोल पाई, बट मैं कंक्रीट आंसर सर को नहीं दे पाई। तो आई डोंट नो सर का इंप्रेशन कैसा रहा होगा, क्योंकि फाइनल मार्क्स तो चेयरपर्सन ही दिया करता है उसमें। फिर टेक्निकल मेंबर्स का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। बट सर एक चीज़ सब लोगों ने पूछी, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने, कि क्योंकि डैफ में मैंने लिखा था कि मैंने DRDO में सिलेक्शन हो चुका है, तो सब लोग पूछ रहे थे कि IIT से हो, यू शुड गो इनटू रिसर्च, व्हाई आर यू कमिंग टू ESE नहीं आना चाहिए तुम लोगों को, तुम तो रिसर्च के लिए हो, इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया तुम्हारे ऊपर, यू शुड गो इनटू दैट फील्ड। तो सर ये मुझे हर मॉक में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। मुझे लगा था मैं डिफेंड कर लूँगी, पर वहाँ नहीं हो पाया। मैंने इस तरीके से डिफेंड किया ये बोल के कि सर रिसर्च तो कर लेंगे लोग, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी ग्राउंड पे कोई होना चाहिए। तो मैंने सेम आंसर दिया। तो आई डोंट नो कि वो कन्विंस हुए कि नहीं हुआ। बाकी सर टेक्निकल का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा था। आई थिंक दे वर सेटिस्फाइड। बस ये सर 5G 6G वाले इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं थे, और बाकी IIT वाला मैं डिफेंड भी नहीं कर पाई थी। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। Okay, so how you feel कि BYJU'S exam prep mock test, mock interview you have appeared for? Yes sir. So was it helpful for your final interview, and how it helped? Yes sir, it helped a lot. तो आई रिमेंबर कि BYJU का मेरा फर्स्ट मतलब मॉक इंटरव्यू था इस साल का। मतलब बाकी मैंने काफ़ी सारी कोचिंग्स में भी दिए थे, तो जो फर्स्ट मॉक था तो उस टाइम मैंने टेक्निकल रिवाइज नहीं किया था।
ऐसा होता है ना कि जब तक तुमको हिट नहीं कर जाता कि ये एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है, तब तक तुम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो मैंने किसी तरीके से डर में, मुझे लग तो रहा था कि प्रिपरेशन नहीं है, मैं शायद नहीं बोल पाऊँगी, बट मैं आई किसी तरीके से देने के लिए। मैंने दिया, उस टाइम मैं ढंग से बोल नहीं पा रही थी, मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही थी अपने सेंटेंसेस, एंड वो मेरी बॉडी में समझ में आ गया था कि कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं हेजिटेट कर रही हूँ बार बार बोलने में। बट वो मॉक इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि नहीं, इंटरव्यू देने के बाद ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर तुम कितने पानी में हो। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत है, रिवाइज़ करना है। एंड आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था कि आपने, जैसे कि आई रिमेंबर आपने फीडबैक दिया था कि जब मैंने बोला था आपने फेवरेट सब्जेक्ट का पूछा था, मैंने थर्मल के बोले थे, HMT, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल एंड ऑल। तो आपने बोला था कि डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इन केस एक्चुअल पैनल में कोई डिज़ाइन साइड का बैठा हो तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो वो एडवाइस काफ़ी हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। मैंने डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से किए थे। तो फाइनल में मुझसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे थे, तो वो अच्छा रहा, इसलिए मैंने प्रिपरेशन की थी। एंड देन ये था कि पैनल ने मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट किया था इस सेंस में। आप लोगों ने सबने बोला था कि यू विल गेट सेलेक्टेड इन दिस ईयर, सो टेंशन मत लो, ऐसा करके। तो वो वाली चीज़ मतलब मैटर तो करती है फाइनली, जब कोई बोलता है आपको, कोई और भी बिलीव कर रहा है आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। एंड तो सर यही फिर वीडियो आई थी, तो मैंने वीडियो अपने आप को देखा था, फिर मैंने एनालाइज़ किया क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या कमी हो रही है, मैं कहाँ नहीं बोल पा रही, कहाँ बोल पा रही हूँ, बैठने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। तो उन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प की थी इस मॉक इंटरव्यू ने। Okay, so Rashmi, now I would like to ask you कि finally what are the suggestions you want to give to the future aspirant, ताकि वो भी नेक्स्ट ईयर इस सीट पर बैठ सके और हम इसी तरीके से उनका स्पॉटलाइट ले रहे हो। तो what are those suggestions you would like to give them finally for the selection? सजेशन मेरा ये रहेगा कि टाइम लगता है ना, ऐसा लाइक जब नए नए बच्चे आते हैं वो सोचते हैं 1 साल में हो जाएगा, वो एक विशफुल थिंकिंग में रह जाती है कि नहीं 1 साल में मेरा हो जाएगा। मे बी लोगों इस तरह की विशफुल थिंकिंग टॉप 10 में ही आ जाएगा। इवन मैंने भी ऐसा ड्रीम किया था, मैं फर्स्ट टाइम आई थी, बट ओवर द ईयर्स जब एक्चुअली तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे साथ एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, तुम्हें लग रहा है, जब समझ में आ रहा है कि वैकेंसीज नहीं आ रही किसी पर्टिकुलर्स में, मे भी पिछले साल ज़्यादा थी बट शायद इस साल नहीं है, तो धक्का लगता है लोगों को। जब धक्का लगता है फिर समझ में आता है कि नहीं, इतना ईजी नहीं है, वो टाइम लग सकता है। उसके लिए फिर इंसान प्रिपेयर करता है बाद में अपने आप को। एंड सर रिवीजन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा कोचिंग से सब कुछ कर लेते हैं, उनको लगता है कि पहले वीडियोज़ में सारे देख लूँगा, उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब कोचिंग, जैसे कि आप भी फैकल्टी हो, तो आप भी लोगों को यही टिप्स देते होंगे कि पढ़ रहे हो उसी के साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन तो उसी टाइम से टेस्ट करो। मैंने भी स्टार्टिंग में ही किया था 1 साल, मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना होता, ये गलत चीज़ होती है। तो रिवीजन, शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है सर। एंड बाकी सोशल सर्कल अपना अच्छा रखना चाहिए, एंड माई फैमिली ऑफ कोर्स। अगर फैमिली का सपोर्ट है तो सर काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। तो अगर कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हो, तो अगर आपके पेरेंट्स में भी नहीं समझते, जनरेशन गैप आ जाता है, तो अपने फ्रेंड से बात करो। ऐसे अकेले नहीं रहना होता। अकेले तो दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, एक सर्कल होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस करो और होप रखो, हो जाएगा, क्योंकि एक बार सिलेक्शन होता है तो वो होने लगता है किसी तरीके से। तो और बाकी ऐसा कभी ऐसा होता है कि सर इस फील्ड में जब लोग आ जाते हैं तो फिर एक कॉर्पोरेट वाले जो दोस्त लोग होते हैं उनसे कंपैरिजन बढ़ जाता है। मे बी दे आर विजिटिंग सम अदर कंट्री, उनका पैकेज 40-50 लाख का हो गया, तो लोगों को सेल्फ डाउट्स आते हैं एट द मिडल ऑफ द जर्नी कि व्हाट आई एम डूइंग, आई शुड हैव बीन देयर, मुझे मैं भी किसी अच्छे पोस्ट पे होता। तो ऐसे डाउट्स आने लगते हैं। तो ऐसा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो स्टिक टू इट, इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर श्योर, बट इट माइट टेक टाइम। तो यही सब चीज़ें हैं सर। ओके, so I feel this journey, whatever you explained, would help to the future aspirants, so that they can also learn from it and they can also plan their journey accordingly. Yes, sir. So thanks Rashmi for this wonderful session. Thank you, sir. Okay, so guys, I feel from this journey, whatever Rashmi explained, you have learned a lot of lessons for your journey. So guys, just implement the things you find you should, so that they can help you in your journey and make you at the same place, or maybe whatever the dream you are having. So goodbye for this wonderful spotlight session. We will be coming up for more such spotlight. Goodbye for this wonderful session.